Hello everyone. Today we will discuss about the nursing as a profession. Nursing is a profession within the healthcare sector focused on the care of individuals, families, and communities so they may attain, maintain, or recover optimal health and the quality of life. So what is profession? Profession is any type of work that need special training or particular skill, often one that is respected because it involves a high level of educations. Okay, कोई भी जो प्रोफेशंस होता है, प्रोफेशन मीन्स व्हाट, ये क्या है जिसमें आपको स्पेशल्स ट्रेनिंग की नीड होती है, पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है ताकि क्या कर सके, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर सके बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन. सो एनी टाइप ऑफ वर्क, कैसा भी काम हो जिसको स्पेशल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और पर्टिकुलर स्किल, दैट इज़ प्रोफेशन. सो द डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग. तो नर्सिंग इज़ एन आर्ट and science. It may be defined as service to the individual which helps him or her to obtain or maintain a healthy state of mind or body and the relief of pain and discomfort. Okay, so nursing क्या है आपकी? nursing आपकी आर्ट और साइंस है और एक सर्विस है जो मीन्स क्या करती है, जो एक हेल्थी स्टेट को ऑफ माइंड ऑफ बॉडी को क्या करती है, मेंटेन करती है, और जो भी आपका डिस्कम्फर्ट है, पेन है, उसको क्या करती है, रिलीफ करती है और पेशेंट्स को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करती है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ANA, तो ANA इज अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन. इट डिफाइंस नर्सिंग एज द प्रोटेक्शंस, प्रमोशंस एंड optimizations of health and abilities, preventions of illness and injury, elevations of suffering through the diagnosis and treatment of human response, and advocacy in the care of individuals, families and community. So here's the full form of nurse. The N is novel. Okay, U is understanding, R is who are responsible for his or her work, and S is sincere, and E is empathy. So these are the role of nurse: noble, understanding, responsible, sincere and empathy for their work. So the next is characteristics of professions. So there are some characteristics of profession, like first is a caring attitude. Okay, कोई भी नर्सिंग प्रोफेशंस में होता है उसका क्या होना चाहिए, केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, मीन्स पेशेंट्स के लिए. ओके, बिकॉज द केयरिंग इज़ द हार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशंस. ओके, सो इवन कभी कभी आप क्या हो जाते हो, बिज़ी हो जाते हो, सिर्फ बहुत आपकी हैक्टिक हो जाती है, अनटिल आपको क्या करना है, केयरिंग एटीट्यूड शो करना है पेशेंट्स को. द नेक्स्ट इज integrity. So integrity is respecting the dignity and moral wholeness of every person without conditions or limitations. Okay, मीन्स आपकी यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए. आपका क्या रिस्पेक्ट करना है, अपनी डिग्निटी को, और जो आपका मोरल है, आपका मोरल, और आप क्या है, प्रोवाइड अ क्वालिटी ऑफ केयर to the patients. The next is authenticity. So know yourself and know your purpose as a nurse. Okay, so to develop connection with their with other including patients and colleagues. So authenticity means सबसे पहले आपको खुद को जानना है, देन आपका पर्पस क्या है, आपका मोटो क्या है, तो आपका गोल क्या है. जब आप ड्यूटी पे, तो आपका गोल क्या है, आपका फोकस किस पे रहता है, आपका पेशेंट पे. ओके, उसको बेटर क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, मीन्स जो भी उसकी नीड है उसको क्या करना, उसको फुलफिल करना. तो ओके, द नेक्स्ट इज गुड लिसनिंग स्किल.
So a successful nurse, in addition to having sound clinical skill, encompasses and has the ability to listen their clients and peers. जो भी में क्या होनी चाहिए, आपका गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप कोई पेशेंट्स आपको कुछ बता रहा है तो आप एकदम से हाइपर हो गए. नो, आप में क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए सुनने की. ओके. Persistence. So sometimes it will take a while to achieve a goal, but successful nurse don't give up. Okay. And the willingness to follow. So successful nurses are often great leaders, and great leaders know when to lead and follow. Okay. मीन्स आप तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपको पता होगा कि आपको कैसे लीड करना है और क्या चीज़ें फॉलो करनी है. बिकॉज जो सक्सेसफुल नर्स होती हैं, दे आर ऑफर ग्रेट लीडर्स, एंड ग्रेट लीडर्स नो व्हेन टू लीड एंड फॉलो. ओके. कब और कैसे किसी को क्या करना है, फॉलो करना है, और कब कहाँ पे क्या करना है, लीड करना है. सो अ डिज़ायर टू कीप लर्निंग. हमेशा लर्निंग के लिए क्या होती चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए. हमेशा नया नया सीखने की क्या होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए. देन आप क्या कर सकते हो, खुद को अपडेट कर सकते हो. अपने नॉलेज को क्या करना है, अपग्रेड करना है. ओके. सो क्रिएटिविटी. सो बी ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड कमिंग अप विथ क्रिएटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. ओके. क्रिएटिविटी होनी चाहिए. द नेक्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग. So, philosophy of nursing state our thoughts on what we believe to be true about the nature of the profession of nursing, and provide a basic for nursing activities, and endorse ethical values we hold as basic and basis our belief in theory. फिलॉसफी क्या होता है, जो फिलॉसफी मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं अबाउट अपने नेचर्स के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में. ओके. जो हम नर्सिंग प्रोफेशंस के बारे में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं. तो ये हमारी एथिकल वैल्यूज़ को क्या करते हैं, शो करते हैं. जो मीन्स वी होल्ड एज बेसिक एंड बेसिस आवर बिलीफ इन थ्योरी. The International Council of Nurse state that the unique function of the nurse is to assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery that we would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. सो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो आपकी, वो क्या किस में बिलीव करती है, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में. ओके. सो एज लेड डाउन बाय द WHO, दैट इज हेल्थ क्या, इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट बेसिक नर्सिंग एजुकेशन इज़ अ फॉर्मली recognized program of study providing a broad and sound foundations in the behavioral lie and the nursing science for the general practices of nursing, for leadership and post basic education specialties for advanced nursing practice. ओके. जो आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो क्या बिलीव करती है, आपके हेल्थ किसके कॉन्सेप्ट में, हेल्थ के कॉन्सेप्ट में बिलीव करती है. जो आपकी हेल्थ होती है क्या होता है, आपके बेसिक नर्सिंग एजुकेशंस होती है, जो मीन्स फॉर्मली रिकॉग्नाइज प्रोग्राम स्टडी, जो हमें क्या करते हैं, ब्रॉड एंड साउंड फाउंडेशन, कैसे बिहेव करना है, कैसे ओके प्रैक्टिस में, नर्सिंग प्रैक्टिस में उसको लाना है, कैसे लीडरशिप क्वालिटी हमें प्रोवाइड करनी है. ओके. सो इन अ स्पेशलिटी फॉर एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस. So there are some objective. So objective is providing competent, safe, high quality and culturally sensitive nursing care to address the health and health needs to diverse women's families and communities. Okay. हमें हमेशा क्या करनी है, competent, safe, high quality care provide करनी है according to culturally sensitive. सो जो आपकी क्रिटिकल इवेलुएट थ्योरीज होती हैं, उनके कंसेप्ट एंड रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम नर्सिंग एंड रिलेटेड साइंस फॉर ट्रांसलेशन इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस. बहुत सारी थ्योरीज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं. ओके. सो यूज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड लीडरशिप स्किल इन इंटरपर्सनल टर्म टू प्रमोट पॉजिटिव चेंज इन द हेल्थ केयर ऑफ वुमेन, न्यूबॉर्न एंड फैमिलीज. ओके. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस और लीडरशिप स्किल्स हमें यूज़ करनी है ताकि क्या कर सके, प्रमोट, हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स और पॉजिटिव चेंजेस को प्रमोट कर सके. सो
apply principle of distributed justice and the social determinants of health in the evaluations of health policy and advocacy for health of women and newborn in local, nation and international context. ओके, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस अप्लाई करना है. ये नहीं है कि आप किसी के साथ अलग बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ अलग बिहेव कर रहे हैं. नो, आपको इक्वली क्या करना है, सबके साथ सारे पेशेंट्स को डील करना है. सो इवेलुएट केयर सिस्टम बाय एनालाइजिंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, हेल्थ केयर पॉलिसीज, services delivery and the finance models, political context and the health indicators to increase the health care. So these are the objectives. The next is concept of nursing. नर्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? नर्सिंग आपका क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ मॉडर्न नर्सिंग encompasses fundamentals nursing concept that include health क्या होती है आपकी? इट इज़ एब्सेंस ऑफ इलनेस, इंजरी और डिजीज़. जहाँ आपकी सब कुछ क्या होती है? एब्सेंस. जहाँ आपकी इलनेस, इंजरी और डिजीज़ क्या होती है? एब्सेंस होती है. इलनेस क्या है आपका? ये आपका इट इज़ फंडामेंटल नर्सिंग कॉन्सेप्ट है जो किसको डिफाइन करता है. जब आपकी हेल्थ में क्या आ जाते हैं? डिविएशन आ जाते हैं. मीन्स ओके, मीन्स आप क्या हो जाते हो? बीमार हो जाते हो. तो दैट इज़ डिविएशंस. मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपकी हेल्थ. एक परफेक्ट हेल्थ क्या है? जहाँ पे आपकी एब्सेंस ऑफ इंजरीज, एब्सेंस ऑफ इलनेस और डिजीज़. लेकिन व्हाट इज़ इलनेस? इलनेस इज डिफाइंस एज अ डिविएशंस फ्रॉम हेल्थ. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. So nurse work to make patients more comfortable and a big part of nursing care reducing patient stress. Okay, मीन्स जब पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स को क्या होता है? मीन्स स्ट्रेस होता है हॉस्पिटल के एनवायरमेंट. तो हम नर्स का क्या वर्क है? वहाँ पे उसको कंफर्टेबल फील करवाना. दैट इज द नेक्स्ट इज हेल्थ प्रमोशन. टू प्रमोट बेटर हेल्थ बाय इन्फॉर्मिंग पेशेंट्स टू थिंग्स सच एज द इलनेस प्रिवेंशन मैथड्स, सेफ हेल्थ प्रैक्टिस and health lifestyle choice. Okay, so these are the concept of nursing: health, illness, stress and health promotion. means better health क्या करनी है? promote करनी है patient को. The next is characteristics of nursing. So there are some characteristics of nursing. The first one is जो nursing होता है it is a caring natures. जो आपका नर्सिंग होता है वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है? आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पेशेंट्स. ठीक है, पेशेंट के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करता है? मेंटेन करता है. जो नर्सिंग का कंसर्न होता है क्या? विद सर्विसेज दैट टेक ह्यूमंस इनटू अकाउंट एज फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. ओके, जो आपकी नर्सिंग होती है वो कमिटेड होती है किसके लिए? प्रमोटिंग इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, आपकी कम्युनिटीज़ के लिए एंड नेशनल हेल्थ गोल्स इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. ओके, जो नर्सिंग है आपके कमिटेड टू पर्सनलाइज सर्विस फॉर ऑल पर्सन विदाउट रिगार्ड टू कलर, क्रीड एंड सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस. ओके, पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करते विदाउट एनी कलर रिगार्ड और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. बिकॉज उसके लिए क्या है? वहाँ पे सारे लोग क्या हैं? इक्वल है. ये नहीं है कि ये वीआईपी पेशेंट्स है या ये पुअर पेशेंट्स है तो उसके साथ वहाँ पे क्या करें? डिफ्रेंशिएट करें. नो, हमें क्या करना है? वहाँ पे इक्वली इकोनॉमिकल स्टेट, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस को मेंटेन करना है. मीन्स विदाउट एनी कास्ट, कलर एंड क्रीड. So nursing is committed to involvement in ethical, legal and political issues in the delivery of health care. The next is elements. So there are some elements of nursing. The first one is accountability. Accountability is service involve intellectual activities and individual responsibilities. Means accountable मतलब responsible for all work. And autonomy. Autonomy is practitioners are relatively independent and control their own policies and activities. Okay, जो practitioners होते हैं वो independently relative होते हैं. आपने मीन्स उनका कंट्रोल होता है अपनी पॉलिसीज़ पे और एक्टिविटीज़ पे. altruism is practitioners are motivated by services and consider their work as an important component of their life.
and the association is there is an organization that encourage or support the high standard of practice. जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आपको encourage करेगा कि इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस आपको यूज़ में लानी है अपने डेली वर्क में. देन यू कैन प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी ऑफ केयर टू द पेशेंट. द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ नर्सिंग. नेचर क्या है आपका, नर्सिंग क्या है, एक केयर है. ओके, साइंस और आर्ट है. ये क्या है आपका, एक हॉलिस्टिक है. एडेप्टिव मैथड्स है, मीन्स एडाप्टेशन. ओके, एडजस्टमेंट एंड पेशेंट सेंटर्ड. मेन फोकस किस पे होता है आपका, पेशेंट पे. तो ये क्या है आपका, एक पेशेंट सेंटर्ड है. सो दीज आर द नेचर्स ऑफ नर्सिंग. नर्सिंग इज अ केयर, साइंस एंड आर्ट, हॉलिस्टिक, एडेप्टिव एंड पेशेंट centers. The next is functions of nursing. So there are so many functions of nursing. The first one is provide spiritual care to the patient. Okay, as a health educator वो क्या कर सकती है, educate कर सकती है patients को, patients के family members को. Okay, health advocate उनको क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकती हैं कि आपको कैसे करना है, कौन सी डाइट लेनी, कौन सी कैसे आपको केयर दे करनी है. ओके, एंड हेल्थ काउंसिल उनको क्या कर, एज अ काउंसलर भी वो क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकती है. एंड लियाजन्स टू कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड रेफरल एजेंट. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नर्सिंग. द नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ नर्स. तो क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए आपकी, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हम्बल एंड लॉयल होना चाहिए. ये नहीं है कि आप खुद स्ट्रेसफुल कंडीशन में और आप पेशेंट से इरिटेट होकर बात कर रहे हो. नो, आपको हम्बल एंड लॉयल होना चाहिए अपने काम के लिए. गुड लिसनर एंड कोऑपरेटिव. ओके, गुड ऑब्जर्वर एंड गुड सुपरवाइज़र होना चाहिए आपको. मीन्स अगर आप गुड ऑब्जर्वर हो तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट की कंडीशंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, अपने काम के लिए क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एडवोकेट एंड गुडली जजमेंट. सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ नर्स. द नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ नर्सिंग. तो इन स्कोप द देयर इज इन रिसर्च, प्रैक्टिस, एजुकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस में. तो यहाँ क्या आपका नर्सिंग का स्कोप है. रिसर्च में भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट रिसर्च कर सकते हो, जिससे आपको क्या कर मीन्स आपको बेटर सॉल्यूशंस मिल सकते हैं कि कैसे आपको केयर प्रोवाइड करनी है. प्रैक्टिस, अगर आप अपनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस यूज़ करो, मीन्स अगर फॉलो करोगे तो आप अपने प्रैक्टिस में ला सकते हो. एजुकेशंस में है एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो. The next is categories of nursing personnel. So there are different categories of nursing personnel. The first one is bedside nurse. A nurse working is an institute with a patient to provide direct bedside nursing care. Okay, जो एक इंस्टीट्यूट में काम करती है और डायरेक्ट बेडसाइड केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को. पब्लिक, कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्स, जो यूजुअली किससे डील्स करती है, आपकी कम्युनिटी में, फैमिली से, किस और कम्युनिटी फॉर किस चीज़ के लिए, आपके हेल्थ प्रमोशंस के लिए, डिजीज़ प्रिवेंशंस के लिए और हेल्थ रिएस्टोरेशंस एक्टिविटीज़ के लिए. एंड द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल नर्स, जो कहाँ करती हैं काम, फैक्ट्रीज़ में करती है, ऑफिस में करती है, कंपनी में करती है. किस चीज़ के लिए, टू फॉर प्रमोशन एंड रिएस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़. मिलिट्री नर्स होती है जो आपके मिलिट्री बेसिस में काम करती है. प्राइवेट ड्यूटी नर्स होती है जो प्राइवेटली हायर्ड होती है, किसके लिए, टू केयर समवन इन नीड. एंड द इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर्स, द नर्स हु हैज़ completed an advanced level specialized nursing program and it is certified to practice as independent nurse practitioners. Okay, independent nurse practitioners का आपका एक 2 years का कोर्स होता है जिसमें उसको एडवांस लेवल स्पेशलाइज्ड चीज़ के बारे में क्या किया जाता है, टीच किया जाता है और सर्टिफाइड किया जाता है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली एज अ नर्स प्रैक्टिशनर्स क्या कर सके, काम कर सके. द नेक्स्ट इज क्लिनिकल specialist. Okay, the nurse who has completed a master degree in a specialty and has a considerable clinical expertise in the specialties. So there are different specialty like आपका child health हो गया, OBG हो गया, okay, medical surgical हो गया. And then the next is nurse midwives
who has completed a program in midwifery, provides a prenatal and the postnatal care and delivers baby to women. Okay. नर्स एज अ नर्स एजुकेटर्स भी क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं विद एडवांस डिग्री, हु टीचेस इन क्लिनिकल और एजुकेशनल सेटिंग, टीचेस थियोरटिकल नॉलेज एंड क्लिनिकल स्किल एंड कंडक्ट रिसर्च. So these are the categories of nursing personnel. So thank you so much.